Good morning, students. Welcome to your social science class. Today we will study about the chapter 2 of economics, that is sectors of Indian economy. Yes, first of all you should know what are sectors. तो देखिए, people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some other are producing services. All these activities are happening around us every minute as we speak. How do we understand these activities? So, one way of understanding them is to group them using some important criteria. These groups are called sectors. तो जिस तरीके से हम डिफरेंट एक्टिविटीज को ग्रुप कर देते हैं, these are called sectors. तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी की into sectors. So how we classify Indian economy? We classified it into three types of sector. Nature of the activity being performed. किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है? Means primary, secondary and tertiary. Yes, first of all we will study about primary sector. Activities undertaken by directly using natural resources, these are called primary activities. For example, agriculture, mining, fishing, forestry, dairy, etc. It is also called primary sector because it performs all the base for all other products as we subsequent make them. इसको बेस क्यों बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर को? क्योंकि जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज हैं जो हम दूसरे काम करते हैं उनके लिए ये एक तरह से बेस प्रोवाइड करता है. Since most of the natural products we get from agriculture, dairy, forestry, fishing, it is also called agriculture and related sector. Here are few pictures shown to you of primary sector. The first one is fishing, agriculture, then forestry. Yes, next one is secondary sector. It covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. तो ये क्या है? इसके अंदर वो एक्टिविटीज कवर होती हैं जहां पर कि हम नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं. किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के थ्रू. इट इज अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. अब ये प्राइमरी के बाद वाला नेक्स्ट स्टेप है. वेयर द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, इट हैज टू बी मेड. यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको नेचर ने प्रोड्यूस नहीं किया. नेचुरल प्रोडक्ट में हम लोग मान लीजिए आप क्रॉप उगा रहे हो, फार्मर जो है कल्टीवेशन कर रहा है तो वो नेचुरल चीजों को यूज कर रहा है, वाटर को, सन लैंड को यूज कर रहा है, जो सनलाइट है उसको यूज कर रहा है. तो यहाँ पर जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसको हमने बनाया है. सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल. इट कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम. तो कुछ प्रोसेस जो है इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग का जरूरी होता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, और इसमें ये आप फैक्ट्री में कर सकते हैं, किसी वर्कशॉप में कर सकते हैं या घर में भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, using cotton fiber from plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugar cane as a raw material, we make sugar or good. We convert earth into bricks. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, हम कॉटन फाइबर जो हमें प्लांट से मिला उसकी स्पिनिंग यार्निंग करके उससे क्लॉथ बना सकते हैं. शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके हम शुगर और गुड़ बना सकते हैं. इसी तरह अर्थ को यूज करके हम लोग ब्रिक्स बना सकते हैं. Since this sector is associated with different kind of industries, it is also called industrial sector. क्योंकि इसमें बहुत तरह की अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे एसोसिएटेड है, सो इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. किस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर
बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज टर्शरी सेक्टर. These are the activities that help in the development of primary and secondary sector. तो ये एक्टिविटीज वो हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है. These activities by themselves do not produce good. अब ये अपने आप कोई भी गुड को प्रोड्यूस नहीं करते, बट दे आर एन एड और सपोर्ट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन है. Goods that are produced in the primary sector need to be transported by trucks or trains. जो गुड्स हमने प्राइमरी सेक्टर यानी कि अपने खेत में जो है वह जो हमने उगाई या प्रोड्यूस की, उसको हम ट्रक्स या ट्रेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल शॉप्स, और उसके बाद उनको होलसेल और रिटेल शॉप के ऊपर बेचेंगे. इन द सेम वे स्टोरेज है. At times it is necessary to store these products in godowns, which is a service made available. तो अगर हम इन अपनी जो भी हमने अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर किए उनको गोडाउन के अंदर रखते हैं, उनको स्टोर करते हैं, तो ये भी एक तरह की सर्विस ही हमें जो है वो प्रोवाइड हुई है. सेम वे कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू अदर्स ऑन टेलीफोन मीन्स हम दूसरों से फोन पे बात करते हैं. बैंकिंग से हम लोग जो है मनी बोरो कर सकते हैं. तो सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. क्योंकि ये जो एक्टिविटीज हैं ये सर्विसेज जनरेट करती हैं, सो दिस सेक्टर इज कॉल्ड सर्विस